everyone. Today we are going to solve exercise 14.2, which is based on presentation of data. Our first question is the blood group of 30 students of class 8 are recorded as follows. We have the data and represent this data in the form of a frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest blood group among these students. So we are having the blood group, that is A, B, AB and O. Okay, first we find the number of students of a particular blood group. After seeing the data, we get that blood group A is of having 9 students, B is having 6 students, AB is having 3 students and O is having 12 students. So total are 30 students. Okay, जो हमें already question के अंदर given था. So you can see this is the frequency distribution table. Okay, we draw a table on the basis of blood group and number of students. Okay, here we have the most common, that is O blood group is the most common. हम टेबल में देख सकते हैं कि O ब्लड ग्रुप है टोटल 12 स्टूडेंट्स का. सो वी कैन से दिस इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप and we have to also find that which is the rarest blood group. So after seeing the table you can see that AB blood group is the rarest because it is of 3 students that are having AB blood group. Okay, now we have our next question. The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. We are having the data of 40 engineers from their residence to the place of work they are found. Okay, now construct a group of frequency distribution. What we have to do, हमें frequency distribution table draw करनी है with the interval of 0 to 5, जिसमें 5 include नहीं होगा. Okay, so here we have the table. डिस्टेंस हमने लिखा 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 and 30 to 35. So as you can see that distance of 0 to 5 is of 5 engineers. जो डिस्टेंस है रेजिडेंस का उनके वर्क से, तो टोटल 5 स्टूडेंट्स का है 5 किलोमीटर का. 5 to 10 किलोमीटर के अंदर आते हैं टोटल 11 इंजीनियर्स एंड 10 to 15 किलोमीटर के अंदर आते हैं टोटल 11 इंजीनियर्स. 15 to 20 किलोमीटर के अंदर आते हैं टोटल 9 इंजीनियर्स. 20 to 25 किलोमीटर के अंदर ओनली 1 इंजीनियर. 25 से 30 के अंदर ओनली 1 इंजीनियर एंड 30 से 35 के अंदर ओनली 2 इंजीनियर. सो दिस इज वी आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ हमसे ये पूछा है व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. सो it can be observed that there are very few engineers whose home are at more than or equal to 20 kilometer distance from their workplace. बहुत कम engineers ऐसे हैं जिनका distance बहुत ज़्यादा है, 20 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है उनके workplace से. And most of the engineers have their workplace up to 15 kilometer. सबसे ज़्यादा जो engineers हैं mostly वो कहाँ तक हैं, in between 15 किलोमीटर के अंदर ही. Okay. Now we have our third question. The relative humidity in percent of a certain city for a month of 30 days were as follows. यहाँ पे हमें जो given है वो है relative humidity in percentage. Okay, so what we have to do, first we have to construct a grouped frequency distribution table with classes 84 to 86, 86 to 88. 2% की डिफरेंस पे हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ड्रॉ करनी है. सेकेंड क्वेश्चन इज विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दैट दिस डेटा इज अबाउट. कौन से मंथ के बारे में है ये डेटा, ये आपको बताना है. एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा, और आपको रेंज भी बतानी है उस पर्टिकुलर डेटा की. ओके, सो फर्स्ट इज हमें क्या ड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सो यू कैन सी दैट वी हैव ड्रॉ अ frequency distribution. First we have taken the relative humidity 84 to 86, then 86 to 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96, 96 to 98 and 98 to 100.
ओके, नाउ वी हैव टू मार्क द नंबर ऑफ डेज. यहाँ पे ऊपर जो हमें डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है अकॉर्डिंग टू द डे. लाइक फर्स्ट डे पे अगर फर्स्ट डेट है तो 98.1%, सेकेंड है तो 98.6, थर्ड डेट है 99.2, ऐसे टोटल 30 डेज का डेटा हमें गिवन है. ओके, तो यहाँ पे हमें एंटर करना है लाइक 84 से 86% के कितने नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं. 86 से 88% के बीच में कितने डेज आ रहे हैं. तो आफ्टर सीइंग द डेटा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन वी कैन सी दैट टोटल वन नंबर ऑफ डे, यानी कि वन डे है जिसमें 84 से 86 के बीच में ह्यूमिडिटी रही है. अगेन वन डे ही है जिसके अंदर 86 से 88 के बीच में ह्यूमिडिटी रही है. 2 डेज हैं जहाँ पे 88 से 90 के बीच में ह्यूमिडिटी है. 2 डेज ही है जहाँ पे 90 से 92 के बीच में ह्यूमिडिटी है. 7 डेज हैं जहाँ पे 92 से 94 के बीच में ह्यूमिडिटी है. 6 डेज हैं जहाँ 94 से 96 के बीच में ह्यूमिडिटी है. 7 डेज हैं टोटल जब 96 से 98 के परसेंट ह्यूमिडिटी है. और 4 डेज हैं जब 98 से 100% की ह्यूमिडिटी है. ओके, सो फर्स्ट वी हैव ड्रॉन द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. सेकेंड हमें बताना है विच मंथ और सीजन, ये डेटा कौन से मंथ और सीजन का है. ठीक है, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो वी कैन से कि ये रेनी सीजन का डेटा है. एंड रेंज हमें बतानी है थर्ड क्वेश्चन के अंदर, तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देंगे. मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रहा है 99.2. ओके, एंड मिनिमम वैल्यू क्या है 84.9. तो जब इसे सब्सट्रैक्ट किया वी आर हैविंग 14.3. दिस इज द रेंज ऑफ डेटा. Our next question is the height of 50 students measured to the nearest centimeter have been found to be as follows. 50 student का डेटा यहाँ पर है. Represent the data given above by a grouped frequency distribution table. Taking the class interval as 160 to 165, यानी कि 5 का इंटरवल लेके हमें क्या करना है टेबल को ड्रॉ करना है. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द हाइट फ्रॉम द अबव टेबल, और हमें बताना है कि इस हाइट से क्या रिजल्ट निकल रहा है या फिर क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं. तो वी हैव डिवाइडेड द हाइट इन सेंटीमीटर एज 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170 एंड 170 to 175. ओके, अब हमें जो ऊपर डेटा गिवन है उसमें से बताना है. तो 150 से 155 के बीच में टोटल 12 स्टूडेंट्स हैं. 155 से 160 के बीच में टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं. 160 से 165 के बीच में टोटल 14 स्टूडेंट हैं. एंड 165 से 170 के बीच में टोटल 10 स्टूडेंट हैं. एंड 170 से 175 के बीच में टोटल 5 स्टूडेंट हैं. This is the grouped frequency distribution table. Now, conclusion हमसे पूछा था, तो it can be concluded that more than 50% of the student are shorter than 165 centimeter. तो we can say कि जो 50% स्टूडेंट है और उनसे ज़्यादा भी उनकी हाइट 165 सेंटीमीटर से भी कम है. Our next question is, a study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days are as follows. एक स्टडी है, उसके अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का एयर के अंदर पार्ट पर मिलियन में ppm में एक पर्टिकुलर सिटी का डेटा 30 डेज का हमें गिवन है. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा. 0.00 से 0.04 के बीच में हमें डेटा बनाना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट पर मिलियन, और हमें बताना है कितने डेज तक जो सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन था एयर के अंदर वो 0.11 ppm से ज़्यादा है. तो एज यू कैन सी वी हैव ड्रॉ अ grouped frequency distribution table. First we have taken जो पार्ट पर मिलियन पार्ट कंसंट्रेशन है दैट इज 0.00 टू 0.04. देन 0.04 से 0.08 के बीच में हमने बनाया है क्लास इंटरवल. 0.08 से 0.12 के बीच में बनाया है.
0.12 से 0.16 के बीच में बनाया है, 0.16 से 0.20 के बीच में बनाया है एंड 0.20 से 0.24 के बीच में हमने क्लास इंटरवल बनाया है। ओके, ये क्या है? कंसंट्रेशन है सल्फर डाइऑक्साइड का इन ppm, पार्ट पर मिलियन। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द अबव डेटा कि 0.00 से 0.04 के बीच में कितने डेज आ रहे हैं, दैट इज 4 डे। 0.04 से 0.08 के बीच में टोटल 9 डे। 0.08 से 0.12 के बीच में टोटल 9 डेज। 0.12 से 0.16 के बीच में टोटल 2 डेज। 0.16 से 0.20 के बीच में टोटल 4 डेज। 0.20 से 0.24 के बीच में टोटल 2 डेज। ओके, this is the grouped frequency distribution table. Now what we have to do, we have to find the required number of days जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है 0.11 ppm से ज़्यादा। तो यू कैन सी 0.12 के बाद वाला जितना भी डेटा है उन सबको हम ऐड कर लेंगे, दैट इज 2 + 4 + 2। तो टोटल 8 डेज हमारे पास हैं जिनके अंदर कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड का 0.11 ppm से ज़्यादा आया है। Now our next question is 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted down as follows. Now prepare a frequency distribution table for the data given above. यहाँ पे आपको डेटा गिवन है जब 3 कॉइन्स को टॉस किया गया 30 टाइम्स। ओके, तो हर एक टाइम नंबर ऑफ हेड्स को नोट डाउन किया गया है। तो हमें क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो व्हाट वी हैव डन, नंबर ऑफ हेड्स को हमने काउंट किया है एंड नंबर ऑफ टाइम्स को भी हमने काउंट किया है। तो नंबर ऑफ हेड्स 0, 1, 2, 3 और नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ से बताएंगे? जो ऊपर डेटा हमें गिवन है। 0 कितनी बार आ रहा है? दैट इज 6 टाइम। 1 कितनी बार आ रहा है? दैट इज 10 टाइम। 2 कितनी बार आ रहा है? दैट इज 9 टाइम्स एंड 3 कितनी बार आ रहा है? दैट इज 5 टाइम्स। ओके, so this is the frequency distribution table of our data which was given to us. Now our 7th question is the value of n up to 50 decimal places. n का वैल्यू हमें गिवन है अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो हमें इस डेटा का क्या बनाना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। 0 to 9 तक का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें बनाना है आफ्टर डेसिमल। एंड इट्स सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अकरिंग डिजिट। सबसे ज़्यादा और सबसे कम कौन सा डिजिट आया है ये भी हमें बताना है। ओके, सो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। डिजिट्स हमने नोट डाउन कर लिए, दैट इज फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 एंड 9। अब फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है कि 0 कितनी बार आ रहा है इस पर्टिकुलर डिजिट के अंदर, दैट इज 2 टाइम्स। 1 कितनी बार आ रहा है? आफ्टर डेसिमल हमें देखना है। 1 आ रहा है 5 टाइम्स, 2 आ रहा है 5 टाइम्स, 3 आ रहा है 8 टाइम्स, 4 आ रहा है 4 टाइम्स, 5 आ रहा है 5 टाइम्स, 6 आ रहा है 4 टाइम्स, 7 आ रहा है 4 टाइम्स, 8 आ रहा है 5 टाइम्स एंड 9 आ रहा है 8 टाइम्स। ओके, so we have draw the frequency distribution table. Now we have our next question, that is what are the most and the least frequently occurring digit. तो least occurring digit तो we are having that is 0 क्योंकि 0 सिर्फ 2 टाइम्स आया है। ओके, एंड मोस्ट occurring digits are 3 and 9 क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, दैट इज 8 टाइम्स। ओके, now we have our next question, that is 8th question. 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The result were found as follows. 30 स्टूडेंट से पूछा गया कि कितने घंटे वो टीवी प्रोग्राम देखते हैं। उन्होंने प्रीवियस वीक में कितना देर तक, कितना घंटे तक, कितने आवर्स तक टीवी प्रोग्राम्स को देखा है और उसका डेटा हमारे पास गिवन है। Now what we have to do, make a grouped frequency distribution table for this data. हमें क्या करना है? grouped frequency distribution table बनाना है, taking class with 5 and 1 of the class interval as 5 to 10. 5 to 10 तक का इंटरवल लेकर हमें बनाना है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20.
Now we have our second question, that is how many children watch the television for 15 or more hours a week. ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 15 से ज़्यादा घंटे तक टीवी प्रोग्राम देखा है. ओके, सो वी हैव ड्रॉ आर फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. हमने क्लास इंटरवल लिया है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. तो 0 to 5 आवर्स तक देखने वाले चिल्ड्रन हैं टोटल 10. 5 to 10 आवर्स तक देखने वाले चिल्ड्रन हैं टोटल 13. 10 to 15 आवर्स तक टोटल देखने वाले चिल्ड्रन हैं 5. एंड 15 to 20 आवर्स तक टोटल देखने वाले चिल्ड्रन हैं, दैट इज 2. Okay, this is our frequency distribution table. Now we have our question, how many children watched television for 15 or more hours a week? कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 15 से ज़्यादा घंटे तक क्या देखा है, टीवी देखा है? So our answer is 2 students are there who watched TV program from more than 15 hours. Now we have our next question. A company manufacturer car batteries of a particular type. The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows. एक कंपनी क्या करती है, कार बैटरीज बनाती है और लाइफ को रिकॉर्ड किया गया है 40 ऐसी बैटरीज का. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, we have to construct a group frequency distribution table for this data using class interval of size 0 to 5 and starting from the interval 2 to 2.5. हमें क्या करना है, frequency distribution बनाना है जिसमें हमें इंटरवल लेना है स्टार्टिंग 2 से 2.5, देन ऐसे ही इंटरवल में स्टार्ट करते जाना है. ओके, तो हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फर्स्ट इंटरवल लिया 2 से 2.5, then 2.5 to 3, 3.0 to 3.5, then 3.5 to 4.0, then 4.0 to 4.5, then 4.5 to 5.0. ओके, सो 2 से लेकर 2.5 तक का बैटरी आवर्स, लाइफ ऑफ बैटरी कितनी बैटरीज की है, दैट इज 2. दिस डेटा वी हैव फाउंड फ्रॉम द डेटा गिवन अबव इन द क्वेश्चन. जो हमें क्वेश्चन के अंदर ऊपर डेटा गिवन है उसी में से हमने ये नंबर ऑफ बैटरीज फाइंड आउट करी है. 2.5 से लेकर 3.0 तक की टोटल 6 बैटरीज है. 3.0 से लेकर 3.5 तक की टोटल 14 बैटरीज हैं. 3.5 से लेकर 4.0 की टोटल 11 बैटरीज हैं. 4.0 से लेकर 4.5 की टोटल 4 बैटरीज हैं. एंड 4.5 से लेकर 5.0 की टोटल 3 बैटरीज हैं. So this is the data we have asked in question. Okay, that's it. Thank you everyone.